Bonjour everyone. In today's class, we will be doing conditional, conditionnel présent, conditionnel passé, conditional in general. Everything related to the conditional form of sentences, conditional way of sentences in class, taught in class 9th and 10th for CBSE boards. Now, here we start with the term conditional. What does a conditional सेंटेंस मीन इन इंग्लिश वी कंसिडर कंडीशनल एज अ मूड ठीक है subjunctive mood conditional mood if you go through your Renan Martin and you read the topics of conditional or subjunctive these are moods in English language but here in French they are considered tenses proper tenses with a certain way of conjugating the verbs. Now, what happens is in conditional is let's understand from the very ground level. The first thing that is there in conditional is a condition is being attached. Something which is unreal or is can be real based on a certain condition. For example, if I had gone to Bombay, I would have met Amitabh Bachchan. अगर मैं बॉम्बे जाती तो अमिताभ बच्चन से मिलती अगर मैं जाती ना मैं गई हूं ना मैं मिली हूं आर यू अंडरस्टैंडिंग इस सेंटेंस का जो कोर है वो एक कंडीशन पे डिपेंडेंट है कहाँ बॉम्बे जाने पे जो मैं ना गई ना मैं मिली अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं रोल्स रॉयस खरीदती तो समथिंग विच इज नॉन एग्जिस्टेंट इतने पैसे नहीं है इसलिए रोल्स रॉयस नहीं है ठीक है ना आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज बेस्ड ऑन अ कंडीशन दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड अब इसी के अंदर हमारे और टाइप के सेंटेंसेस भी होते हैं अब इनको कैसे कैसे बनाना है हम सब सीखेंगे फर्स्ट अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ इट सो इट इज अ सेंटेंस दैट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन अ कंडीशन राइट अब नेक्स्ट चीज क्या है इसमें फॉर एग्जाम्पल कंडीशन सिर्फ ये नहीं होती कि पास्ट में ही थी मैं जाती तो ऐसा करती पैसे होते तो मैं खरीदती नहीं अगर हम प्रेजेंट में बात करें इफ आई टेल यू इफ यू वर्क हार्ड you will pass the exam. So if you work hard, present में condition है if you do something right now ठीक है the consequence will be in the future. You will pass the exam. That's one way of putting it. And for example, one more example. If you want to pass, work hard. I have just inverted the same sentence but with a different tense. First, what did I say? If you work hard, if के साथ present में condition है if you work hard you will pass the exam second condition क्या है if you want to pass the exam work hard अब क्या किया मैंने if you want to pass the exam condition जो condition है वो present में आ गई ठीक है ना work hard this is imperative mood of English जिसको हम imperative tense फ्रेंच में बोलते हैं तो imperative conditional subjunctive ये सब इंग्लिश के moods हैं लेकिन फ्रेंच में proper tenses हैं आई होप यहां तक सबको कोई दिक्कत नहीं है कैन आई सी अ थम्स अप आरव आशी रिद्धि रुद्रांशी सबा ठीक है दिस इज द बेस हाँ जी दिस इज द बेस की कंडीशनल क्या है भाई कंडीशन अटैच्ड है अब वो किस किस केस में कैसे कंडीशन अटैच्ड है ये अभी हम सीखेंगे ठीक है अब जो नॉर्मल प्रेजेंट टेंस में कंडीशन है जिसमें आपको कुछ नया नहीं सीखना वो हम सबसे पहले सीखेंगे फिर हम कंडीशनल प्रेजेंट में जाएंगे जो क्लास 9th में किया था फिर हम कंडीशनल पासे पे जाएंगे जो क्लास 10th में है बट ओवरऑल हमारे इस लेसन के एंड तक आपको कंडीशनल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जितनी भी फॉर्मेशंस एग्जिस्ट करती हैं और जो आपके सिलेबस में है वो आज खत्म हो जाएंगे तो लेट अस गेट स्टार्टेड आई एम sharing my screen. Just allow me a moment. It is loading. Zoom has changed. See, the Zoom app has updated. I don't know how to use this whiteboard now.
but let's try. Let's try doing this. Please bear with me if I'm a little slow in grasping what the new feature holds. It looks like word only. Let's start. So the first thing which I said was if clauses. इनको हम बोलते हैं C clauses. C clauses. हाँ, so C clauses में क्या है? If clauses में conditions attached हैं. So the first way of having this condition would be C plus présent plus future simple. अब ये मैं क्या लिख रही हूं? I will explain this to you. And I am putting a bracket over here. I hope you all understand the concept of BODMAS. सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, तो ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व होते हैं, रिमेम्बर मैथ्स में। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? ये ऐसा कोई रिलेटेड नहीं था, आई वॉज जस्ट शोइंग ऑफ कि मेरे को मैथ्स भी मैंने पढ़ी हुई है, सिर्फ लैंग्वेज नहीं पढ़ी। तो ना सिर्फ फ्लॉन्ट कर रही थी मैं, और कुछ ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इफ यू वॉन्ट टू, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड। नाउ कंडीशन क्या है? इफ किसके साथ लगा है? प्रेजेंट में कंडीशन के साथ। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, राइट? ठीक है। अब सी प्लस जो प्रेजेंट है, थोड़ा सा टाइम देना, मुझे अंडरलाइनिंग वगैरह सारा देखना पड़ेगा कहाँ से आएगा। आई कांट गेट इट। अच्छा अभी समझ लो, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं पहले से देख के रखूंगी। ओके, सी प्लस प्रेजेंट, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर सिंपल में क्या था? इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। तो इफ के साथ जो कंडीशन लगी है वो प्रेजेंट में लगी है, एंड यू विल पास द एग्जाम फ्यूचर में जा रहा है। अब मैं इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकती हूँ, यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड। मतलब मैं यू विल पास द एग्जाम को आगे ले जाऊं, इफ यू वर्क हार्ड को पीछे लगा दूं। सेंटेंस का मतलब एग्जैक्टली सेम रहता है, यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, राइट? आई नीड टू सी रिएक्शंस फ्रॉम यू सो दैट आई अंडरस्टैंड दैट यूर अंडरस्टैंडिंग। आरव, आशी, रिद्धि, रुद्रांशी, सबा क्लियर है? सेम रहेगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, सेम चीज है। अब क्या, अब इसके अंदर मेन पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? इफ यू वर्क हार्ड, इफ के साथ जो प्रेजेंट है ये साथ में रहेगा। ब्रैकेट का मतलब है इनकी शादी हो चुकी है, अब हम इनको अलग नहीं करेंगे। ये आमिर खान नहीं है, बार बार नहीं इधर से उधर जाते। तो ये अब ये क्या है? यहाँ पे हमने इकट्ठा कर दिया इनको। तो सी प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर सिंपल। अब यहां पर सी प्लस प्रेजेंट सेंटेंस के बिगनिंग में भी हो सकता है, सी प्लस प्रेजेंट सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है, लेकिन सी के साथ प्रेजेंट ही रहेगा, फ्यूचर सिंपल नहीं आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्लेसमेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस? कि सी प्लस प्रेजेंट को ब्रैकेट में इसलिए डाला है, चाहे उसको, चाहे इस कंडीशन को सेंटेंस के पहले लिखो या सेंटेंस के बाद में लिखो, लेकिन ये कंडीशन प्रेजेंट के साथ ही रहेगी, सी के साथ फ्यूचर सिंपल नहीं जाएगा, राइट? सो फार सो गुड एवरीवन। अब यहां पे अगर मैं यहां पे आपको लिख के दिखा देती हूँ कि दिस विल रिमेन द सेम, यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड। तो इफ के साथ प्रेजेंट टेंस ही चल रहा है, फ्यूचर सिंपल नहीं आया है। ये हमारी एक कंडीशन हो गई, एंड हमारा सेकंड पॉइंट हो गया सी प्लस प्रेजेंट एम्पराटिव। अभी मुझे एक्सेंट्स डालने नहीं आ रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है ना, तो देर इज एन एक्सेंट ओवर एम्परातिव। तो सी प्लस प्रेसो, प्रेजो में भी सी प्लस प्रेजो प्लस एम्परातिव में क्या है, अब हमने एक कंडीशन दी कि इफ यू वांट टू पास द एग्जाम, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। अब इसमें क्या किया, इसमें क्या किया हमने, सी के साथ, इफ के साथ प्रेजेंट में रिजल्ट लगा दिया, इफ यू वांट टू पास द एग्जाम वर्क हार्ड, कंडीशन बाद में लगा दी। लेकिन अगर वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास द एग्जाम, ये भी हो सकता था, इसको हम चेंज कर सकते थे, लेकिन सी के साथ इम्पेरेटिव नहीं लगेगा, सी के साथ फ्यूचर सिंपल नहीं लगेगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आप सबके जानने के लिए, क्योंकि जब तोम कॉन्वेनाबल आएगा, ये मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब तोम कॉन्वेनाबल आएगा, जब मिक्स टेंसेस की एक्सरसाइज आएगी, तो आपके माइंड में ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि इफ के साथ क्या क्या लग सकता है। इफ के साथ फ्यूचर सिंपल लगेगा ही नहीं, इफ के साथ इम्पेरेटिव लगेगा ही नहीं, अगर नेक्स्ट वर्ब प्रेजेंट में है तो इफ के साथ प्रेजेंट लगेगा। अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि इफ वाला क्लॉज है सेंटेंस में, तोम कॉन्वेनाबल में भरना है, एंड आपके पास ऑप्शंस हैं प्रेजेंट और फ्यूचर सिंपल के, तो यू हैव टू नो, यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि मैम ने सिखाया था कि सी प्लस प्रेजेंट की शादी हो चुकी है, इनको अलग नहीं कर सकते हम। आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये चीज जब हम टेंसेस करते हैं ना बेटा, कोई भी टेंसेस जब हम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इंडिविजुअल क्वेश्चन करने के लिए हमने मास्टर नहीं करने हैं, टॉम कॉन्वेनाबल के लिए भी तो मास्टर करने हैं। एंड टॉम टॉम कॉन्वेनाबल को मास्टर करने का सिर्फ एक तरीका है कि पहले इनको इंडिविजुअली मास्टर किया जाए, इनकी इनका पैटर्न पकड़ लिया जाए कि ये एग्जिस्ट ही कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, कि कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं ये किसी भी, you talk about any mastermind of any conspiracy, what do? अगर कोई बैंक में रॉबरी करता है तो क्या करता है, वो पहले उसको स्टडी करता है, पूरा पैटर्न निकाल लेता है, कौन किस टाइम आता है, कौन किस टाइम जाता है, कौन सा क्या होता है, एवरीथिंग, यू वॉच सो मेनी मूवीज, उसमें वो क्या करते हैं, किसी किसी भी इंसान को टारगेट करने से पहले उसका पूरा पैटर्न निकाल लेते हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग आउट द पैटर्न ऑफ एवरी इंडिविजुअल टेंस, ताकि हमें एग्जैक्टली पता हो कि इस टेंस को कहाँ से अटैक करना है। ठीक है, तब जब वो टॉम कॉन्वेनाबल में भी आएगा तो आप उसको भीड़ में से पहचान लोगे कि ये इसका क्वेश्चन ही नहीं है भाई, ये एक होता ही नहीं है। अब एक बात बताओ, आपने प्रोनो पर्सनल टॉपिक में हमने सबसे पहले क्या किया था, पार्ट वन में, कि इसके रूल्स याद करो। जब हमने रूल्स याद किए थे और आपने लिखा था कि इनडायरेक्ट प्रोनो जो है वो सिर्फ लिविंग बींग्स के लिए एग्जिस्ट करता है। इनडायरेक्ट प्रोनो कौन से थे, आ आला वाले, जो प्रेपोजिशन जिनमें आती है आ आला, सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में जो प्रेपोजिशन आ आला वाली होती हैं, ठीक है ना, जब हम उनको रिप्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट हैज टू बी लिविंग, ये किया था हमने, याद है आपको? अब अगर ऑब्जेक्ट लिविंग ना हो तो, अगर मुझे je vais à दिल्ली बोलना हो तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशन है आ वाली, लेकिन ऑब्जेक्ट इज नॉन लिविंग, दिल्ली बोल दिया मैंने, je vais à दिल्ली, तो अब जो मैंने प्लेस का नाम ले दिया, तो अब आपको पता है यहाँ इनडायरेक्ट नहीं लग सकता, क्योंकि आपको रूल क्लियर है इनडायरेक्ट का कि उसमें लग ही नहीं सकता। देन यू विल स्कैन योर ब्रेन, क्या क्या और क्या हो सकता था, हमने क्या किया था ना, मेमोरी स्कैन होगी, फिर आपको याद आएगा यहाँ पे वाई लगेगा जहाँ पे प्लेस की बात हो रही है और आ आला आ रहा है। दैट इज हाउ यू बीन डूइंग प्रोनो पर्सनल, द सेम वे यू विल डू द टेंसेस। मोस्ट ऑफ यू कॉल मी अप एंड से मैम टॉम कॉन्वेनाबल समझ नहीं आ रहा, इसलिए समझ नहीं आ रहा टॉम कॉन्वेनाबल, क्योंकि आपने उनके इंडिविजुअल पैटर्न मास्टर नहीं करे हैं हर टेंस को। आपको लगता है सिर्फ क्वेश्चन ऊपर आया और आपने उसको फिल इन द ब्लैंक करके दे दिया, क्वेश्चन हो गया। नहीं बच्चे, ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन तब होगा जब आपको हर क्वेश्चन में जो आपने टेंस लगाया है वो सेंटेंस देखते ही आप समझ जाओ, ओ इसलिए ये नहीं हुआ। सो आई यू अंडरस्टैंडिंग कैसे कर रहे हैं हम? ओके, अभी इतना पार्ट क्लियर है, अब हम इस पे वापस जाते हैं, एंड आई विल बी ओपनिंग
और शीट, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है आज बेटा, क्योंकि ये जो अपडेशन हुआ है उस पे मैं थोड़ा वेल वर्स्ड नहीं हूँ, हो जाऊंगी। आई एम अ गुड लर्नर। ओके, now this one, le conditionnel. Now what is conditional? This we've just discussed. It it expresses the conditional mood is used when an action is not certain. It expresses something that would happen if a condition is fulfilled. Think of these English words: would, could, should, might, would like, would have. Whenever you see these words in English, there's a high possibility that French will require the conditional. मतलब जब भी आपके मन में लगे ना कि इसकी ट्रांसलेशन उस पे जा रही है, तो इसका मतलब है यहाँ कंडीशनल यूज होने वाला है। Uses of the conditional: to express a wish, काश मैं कर जा, मैंने कहा ना मैं मिल पाती, कर पाती, आई वुड लाइक टू विजिट फ्रांस, je voudrais visiter la France, ये प्रेजेंट कंडीशनल यूज हो रहा है। I would love to learn French. J'aimerais apprendre le français. To make polite requests. Donnez-moi un café. Give me a coffee. Je voudrais un coffee. Another example. Pourriez-vous répéter? This is out of politeness. Now look at one thing. आपने अपने बड़े से पानी मांगना है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे गिव मी वाटर। आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? कुड यू प्लीज गिव मी वाटर। तो हियर ऑल्सो व्हाट यू विल से इज pourriez-vous me donner une verre d'eau? ठीक है ना? कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? देन नेक्स्ट इज टू गिव एडवाइस। यू शुड स्टडी। तो अब आप एडवाइस दे रहे हो, पोलाइटली एडवाइस दे रहे हो, तो आपने कहा tu devrais étudier, vous devrez dormir। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, हो सकता है, ठीक है ना? इमेजिनरी सिचुएशंस, विदाउट मनी आई वुड नॉट ट्रैवल, इमेजिनरी है, हिपोथेटिकली है सारी सिचुएशंस। देन फॉर्मेशन ऑफ कंडीशनल, अब इसमें भी इमेजिनरी सिचुएशन में ये भी है ना। सी जेते रीश j'achèterais une maison, इफ आई वॉज रिच आई वुड बाय अ हाउस। तो ये सेम चीज हो गई, मैं बॉम्बे जाती तो अमिताभ बच्चन से मिलती। देन फॉर्मेशन ऑफ कंडीशनल प्रेजेंट, ये हम थोड़ा सा उसमें बाद में करेंगे, पहले हम जो कर रहे थे हम वो वाला कंडीशनल करेंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। दिस होल वर्ड फाइल आई सेंड इट टू यू बच्चे। हम पहले इसमें वापस जाते हैं जो हम अभी कर रहे थे, सी प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर सिंपल, ठीक है ना? सी टू एच यू डी प्रेजेंट में, हियर सी टू एच यू डी, tu réussiras, if you study you will succeed। Another one. Si nous partons tôt, if we leave early, nous arriverons à l'heure। हम जल्दी पहुंचेंगे, अगर हम जल्दी जाएंगे तो हम जल्दी पहुंचेंगे। Nous arriverons à l'heure, if we leave early we will arrive on time। Si elle travaille, अगर वो मेहनत करेगी, काम करेगी। travail का मतलब सिर्फ जॉब वाला travail नहीं होता, travail का मतलब होता है वर्क करना, वर्किंग ऑन योर own capability। तो si elle travaille, elle gagnera de bonnes notes। if she works, she will get good marks। तो अब here never write si tu et tu dira, मैंने आपको बता दिया था सी के साथ फ्यूचर सिंपल नहीं लगेगा, ठीक है ना? दैट्स नॉट करेक्ट। इट्स सी के साथ हमेशा प्रेजेंट लगेगा। फ्यूचर नेवर कम्स इमीडिएटली आफ्टर सी। ये तो बोल्ड में लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है? दिस हैज टू बी अंडरलाइंड। यू विल गेट दीज नोट्स। सी प्लस प्रेजेंट एम्पराटिव, दिस इज यूज्ड व्हेन गिविंग इंस्ट्रक्शंस। अब आप अपने से छोटे को बता रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो। सी tu vois Paul, appelle-moi, if you see Paul, call me। Si tu vois Paul, if you see Paul, call me। Then, si vous avez une question, demandez-moi, if you have a question, ask me। Then, si tu finis tes devoirs, va jouer, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया है
तो गो एंड प्ले। अब ये दिस इज द क्वेश्चन दैट माय सन विल आल्सो आस्क, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तो आई, अब ये नहीं मैं बोलना कि काम खत्म कर, आई विल आस्क अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो खेलने चले जाओ। यू नो हाउ टैक्टफुली द मदर्स हैंडल इट। सो दिस इज what C वाले sentences have C plus présent plus future simple, C plus présent plus imperative। मैंने एरो इसमें नहीं लगाना था, प्लस ही लगाना था, बट इट इज जस्ट दैट कि ब्रैकेट्स नहीं लगाए यहाँ पे, ये करने के लिए कि C प्लस présent हमेशा साथ में रहेगा। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। सो दिस इज पार्ट वन ऑफ conditional। This was part one of conditional. After this, we will be doing conditional two, that's conditional présent part two. And अगर हम सेम ही पार्ट में कर पाए तो conditional passive भी कर लेंगे, नहीं तो फिर हमारे पास थर्ड पार्ट में करना पड़ेगा। Thank you everyone.